So, welcome back. Welcome once again. I have started the recording once again. So, like I told you earlier, my name is Umar Gilani. I would be your instructor, teacher, director for A-level drama. Cambridge has recently started this course at A-level program. Previously, they were having it in IGCSE, and obviously, it's being offered everywhere in the world. Students who are interested in acting, modeling, who want to become social media influencers, or who wants to add some interesting course in addition to their sciences or other courses, they can go for it. So it's being offered since centuries, you can say, and it has quite potential as far as careers are concerned. So we would be talking about the career aspect, but let's quickly move on to some textual details first, and then I would show you some videos regarding A-level drama, and later on in the end, we would be uh, taking question answers. I would be taking your questions. So let's dive into it. I hope you can hear me now nice and clear. So A-level drama, the course code is 9482. And this image is quite self-explanatory, which is specifying that you would be working as a team primarily. So first thing we should talk about, why study drama? Like in a society in which effective communication is vital, the study of drama develops verbal, non-verbal, individual, and group communication skills, which are skills for living. So they're called life skills actually. And working in team is really important aspect of life. I would like to talk about in the beginning a small story, the story of a Google CEO. His name is Sundar Pichai, and well, once when he was being considered as a candidate for the CEO, the jury member asked him for the interview, and they asked him just one question. And they said, Sundar, there will be just one question. And the answer, your answer, would define that whether you deserve to be a CEO of the world's biggest and most influential company, that is Google, or not. You know what question did they ask him? It is regarding team player, actually, teamwork. They asked him, what is your biggest deficiency in your career and how did you cope with that? It's quite, unusual question. They were not asking him that how much profit would you earn us, how would you cut down the cost, just like in Pakistan, in other countries, they ask a certain sort of question from the CEOs. They didn't ask him such a question. They asked him rather quite a smart one. Okay, what's your biggest weakness? What was your biggest weakness rather, and how did you fix that, or how did you get out of it? Sundar told them a tiny small story about his background. He said that I'm going to brief it right now. Inshallah, जब class start होगी, then we would be talking about it in a detailed thing. He said कि जिस society में I was raised and born in slums of India, जहाँ पे life was very hard. So I was brought up with a feeling, with only one thing in mind, that I should be able to do everything, like a one-man army. And he said that कि वो चीज मेरे अंदर इतनी ज्यादा थी that I always try and prefer to do everything by myself because I had firm belief in myself कि मैं ठीक कर लूंगा, और मैं कर लेता था. He got scholarship to study in US. He got US immigration सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से. And he said that कि मेरी यही मेहनत, अपने पे रिलाय करना, मेरी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अ टीम प्लेयर. मैं ये सोचा था कि उसको देने से बेहतर मैं खुद ही कर लूं, बिकॉज आई कैन डू थिंग्स विद परफेक्शन. ही वाज परफेक्शनिस्ट. So he spent 10 years in Google already. He was the in charge of Google Chrome program. And he said that in those 10 years, I worked on that deficiency to a great new level.
and I started trusting people, relying upon them, facilitating them with resources, and I became a team player. And I believe that उसने कहा कि मेरी जो ये deficiency थी to work solo and alone was a big hindrance in my success. And now since I'm a very good team player, I think I'm better now. उसके इस response पे उन्होंने they made him CEO of the world's biggest company, which is called Google and Alphabet, obviously. So now you know the importance of team play, working in groups. ये सबसे बड़ी skill है which you will get in A-level drama. आगे move on करते हैं. Drama enhances students' artistic and creative abilities and gives them a better understanding of themselves and their world through an exploration of drama contexts relating to identity, societies, cultures, ideologies, gender, time, and change. Students are able to become more creative, critically reflective members of the community. So inshallah, you would feel these changes in your personality. Quickly आगे move करें और काम की बातों पे जल्दी आ रहे हैं. In drama, students are able to explore intellectual, social, physical, emotional, and moral domains through learning, which involves thought, feeling, actions, and thought process, obviously. Drama fosters self-discipline, confidence, and teamwork, and develops skills in interpreting, researching, negotiating, problem solving, and decision making. ये चीजें A level के बाकी ज्यादातर कोर्सेज में नहीं है. ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज अ गुड वन, मीडिया स्टडीज इज आल्सो गुड, जो आपको कुछ डिफरेंट सिखाता है. और ड्रामा में दे टेक यू टू द स्टेज, यू हैव टू परफॉर्म. सो आप अपने कंफर्ट जोन से, अपनी हेजिटेशन से बाहर निकलोगे, and we will work like a family, and obviously we're going to have a great time inshallah. So आगे move on करते हैं. Drama is an important tool for preparing students to live and work in a world that is increasingly team oriented. Team work पे बहुत emphasize करेंगे हम, rather than hierarchical. ठीक है, या solo you can say. Hierarchy होती top to bottom आना, not parallel. तो team oriented means parallel, आपस में मिल के काम करेंगे. Drama also helps students develop tolerance, ये बहुत important चीज है, and empathy. In order to play a role completely, an actor must be able to fully inhabit another's soul. अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि हम ये ड्रामा ए लेवल में जब पढ़ लेंगे तो हमें कहाँ लेके जाएगी. Where does drama lead to? The study of drama provides a good foundation for advanced study in creative and performing arts administration, acting, media studies, teaching, journalism, law, public relations, and speech pathology. ये सारी चीजें आपकी improve हो जाएंगी. और आपको पता होगा जो बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, they just don't want bookworms. They like such students जिनके complex subjects के साथ कुछ soft subjects भी हो. तो A-level media studies and drama are considered soft subjects, and art and design as well. Well, आगे move on करते हैं. Drama is also important in the development of leisure skills and encourages ongoing involvement in community. Theatre encourages active interaction in all forms of cultural activity. Any career which involves social interaction and public presentation will be enhanced by the study of drama. So आपका confidence भी boost होगा, whether you become a CSS officer in future and you want to join maybe foreign relations or maybe some embassy of Pakistan in different countries. हर एस्पेक्ट से आपको ड्रामा हेल्प आउट करेगा. और यू वांट टू मे बी गो टू लम्स एंड यू वांट टू परस्यू योर बीबी और एमबीए, वहां पे भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है. तो सारा आपका जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, हेजिटेशंस हैं, आप ए लेवल में अपनी खत्म कर लोगे. हमारी जितने भी 5-10 स्टूडेंट्स की क्लास होगी, घर वाली बात होगी, एंड वी वुड पॉलिश आवर स्किल्स एंड इट विल बी फन. आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. वेल, प्रोफेशंस, अभी हम बोरिंग बातों पे आएंगे, लेकिन अभी हम इंटरेस्टिंग बातें पहले कर लें और कुछ वीडियोस भी अभी देखेंगे. प्रोफेशंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ड्रामा कौन कौन से हैं? द पर्पस ऑफ ड्रामा डिग्री इज to look at the way media and performing arts, including acting, direction, talent management, etc., affect society as a whole. It answers questions about how can you see my screen? I hope you can.
अच्छा आफिया, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं आपके क्वेश्चन जरूर आंसर करूंगा लास्ट में। यू कैन सी माय स्क्रीन, कैन यू? आई होप यू कैन। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, जीनियस। सो हम क्या कर सकते हैं? इट आंसर्स क्वेश्चन अबाउट हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस हाउ द वे पीपल एक्ट in their lives and in business. You can get drama and performing arts degree from a number of universities, including art and online schools. Some schools combine this department with other fields of study, which means ये आपको PDF मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं वो मैं बात करने लगा हूँ। ड्रामा पढ़ने के बाद आप चाहो तो इन करियर्स में अपने आप को परस्यू कर सकते हो। यू कैन बिकम एक्टर, मॉडल, परफॉर्मर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर्स, थिएटर डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर वो लोग होते हैं जो कि ओवरऑल सुपरवाइजर ऑफ अ शूट होते हैं, चाहे वो फैशन शूट है, चाहे वो टीवी कमर्शियल है, चाहे वो कोई थिएटर परफॉर्मेंस है, और वेदर इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म और म्यूजिक वीडियो। प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये ड्रामा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर्स, ठीक है, आपको पता सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर है। पीपल आर नाउ फीलिंग द नीड कि दे शुड हैव, देयर मार्केटिंग टीम शुड हैव सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स। यू कैन बिकम वन। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आपको पता नेटफ्लिक्स रेगुलरली हायर्स रिमोटली ऑनलाइन और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करते हैं फॉर देयर नॉन इंग्लिश प्रोजेक्ट्स, एंड दे प्रेफर मीडिया एंड ड्रामा स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स एनालिस्ट, टॉक शो होस्ट, ट्रैवल राइटर, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सोशल मीडिया मैनेजर, उसके अलावा रेडियो प्रोड्यूसर, फैशन शो प्रोड्यूसर, मैगजीन एडिटर, न्यूज एंकर, वीडियोग्राफर, लॉबिस्ट, advertisement or advertising, copywriter, fashion publicist, fashion film executive producer, copywriter, TV news producer and production manager and so on. ये आप ए लेवल ड्रामा पढ़ने के बाद अपनी करियर परस्यू कर सकते हो, इवन राइट आफ्टर ए लेवल। आई एम नॉट डिस्करेजिंग फॉर अ 4 year डिग्री प्रोग्राम, बट मैं बता रहा हूँ बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से स्टूडेंट्स ए लेवल के बाद अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने सुना होगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी और हाई फेवरेट टॉप फेवरेट कंपनीज हैं which can highly pay, including Google, Facebook, Amazon, and Apple, they no longer require university degrees. Even after A level, you can join such companies, and obviously, ये तो high tech companies हैं. Similarly, you can start similar careers even after A level, but obviously, it's better to go for a 4 year degree first after A levels, and then you can start your career. आगे move on करते हैं quickly. It's an image which is quite nicely portraying the drama thing. Syllabus structure, आफिया पूछ रही थी, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में देखते हैं। कंप्लीट ए लेवल प्रोग्राम में जो कि 2 years पे स्पैन करता है, 4 कंपोनेंट्स हैं। बट अगर हम एएस की बात करें तो राइट नाउ आई थिंक यू शुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट एएस फर्स्ट। एक रिटन एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल ड्रामा परफॉर्मेंस होगी। वो परफॉर्मेंस आप लाइव परफॉर्म करोगे, चाहे ऑडियंस बैठी हो या ना बैठी हो, और हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, और रिकॉर्डिंग वो यूएसबी एंड डीवीडी की फॉर्म में कैमरेज को सबमिट होगी। इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार चीज है, और उसकी बेस पे आपको ग्रेड मिलेगा। सिंपल। सो इट्स नॉट लाइक अदर बोरिंग डिफिकल्ट ओ एंड ए लेवल कोर्सेज जिसमें आपको पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाते हो। इट्स फन, इसमें आपको परफॉर्म करने का मजा आएगा, करने का मौका मिलेगा। एंड ऑब्वियसली आगे मूव ऑन करते हैं, और हमें इसमें क्या क्या चीज मिल सकती है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, ए कंप्लीट ए लेवल की बात करते हैं। कंपोनेंट 3 क्या है? थिएटर मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। यानी कंप्लीट ए लेवल की बात करूं तो 2 आपकी परफॉर्मेंसेज हैं जिसको हम कोर्स वर्क बोलते हैं, और 2 आपके, एक आपका एग्जाम है और एक आपकी एक ऐसे है 2500 to 3000 वर्ड्स का, जो आप मेरी गाइडेंस से, मेरी हेल्प से इंप्रूव कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल एग्जाम है जिसमें यू विल बी ट्रेन्ड बाय मी, बट यू विल बी ऑन योर ओन। जस्ट एक एग्जाम है। बाकी ए लेवल कोर्सेज में 4 एग्जाम्स होते हैं, सब में यू आर ऑन योर ओन, डू और डाई सिचुएशन होती है, इसमें नहीं होगी। सो 25% वेटेज आपकी उस पर्सनल थ्योरेटिकल एग्जाम की, और 75% जो है वेटेज वो एक ग्रुप वर्क की है, in which you can take help from group members and teacher obviously. So it's fun, grade wise it's quite manageable. बेटा रहमा
आई एम सो हैप्पी दैट यू आर क्वाइट एक्साइटेड एंड आस्किंग क्वेश्चंस। ये सारी बातें आगे एड्रेस होने लगी हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस अब एड्रेस इंशाल्लाह हो जाएंगे और फिर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। क्विकली करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। कंपोनेंट 1 जो मैंने बोला था एएस में होता है, रिटन पेपर 2 आवर्स का 60 मार्क्स का, दैट्स ऑल। दिस पेपर हैज 2 सेक्शंस, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू 1 टेक्स्ट इन ईच सेक्शन, आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, ठीक है, और आपने ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का टेक्स्ट चूज करना है और उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करना है। कैसा होगा जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और वैसे भी आप ट्रायल के तौर पे इसको ज्वाइन कर सकते हो जब कॉलेज आपको रिज्यूम करेगा, स्टार्ट होगा फॉर एएस A1 के लिए। आप उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग वीक। आप ड्रामा का लेसन भी अटेंड करोगे, दूसरा लेसन भी अटेंड करोगे, देन यू विल डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, करियर वाइज भी और फन वाइज भी। प्रैक्टिकल ड्रामा में क्या होगा, कंपोनेंट 2 एएस में दूसरी चीज है जो हम पूरा साल जिसके लिए हम प्रैक्टिस, रिहर्सल, कॉस्ट्यूम्स बना रहे होंगे, दैट इज योर परफॉर्मेंस। उसके भी 60 मार्क्स हैं। गॉट इट? 60 मार्क्स इक्वल वेटेज हो गई। इस इंटरनली असेस्ड यानी मैं आपकी इंटरनल ग्रेडिंग करूंगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि किस स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। अब्दुल्ला अभी हमारे इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन में है, आफिया है, इब्राहिम है, रहमा है। लेट्स से मैं कहता हूँ रहमा को बी मिलना चाहिए और एक्स वाई जी को सी मिलना चाहिए, तो कैम्ब्रिज वुड मोस्ट लाइकली फॉलो माय सजेशंस, क्योंकि ए लेवल मीडिया स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी हम रिकमेंड जो ग्रेड करते हैं मोस्ट लाइकली वही ग्रेड रिफ्लेक्ट करता है आपकी फाइनल डिग्री पे, फाइनल ए लेवल सर्टिफिकेट पे। ऐसा ही होता है क्योंकि उनको पता है कि टीचर्स आर इंटरनल मॉडरेटर, उन्होंने देखा बच्चे ने सारा साल कैसा परफॉर्म किया, बट ऑब्वियसली हम उसमें कुछ प्रूफ भी साथ सबमिट करते हैं। सो internally assessed and externally moderated by Cambridge International. Each candidate will participate 2 group performance. आपकी 2 ग्रुप परफॉर्मेंस होगी, इंडिविजुअल नहीं है। IGCSE में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होती है, पर गुड थिंग अबाउट ए लेवल कि इसमें आप अकेले नहीं हो। इसका मतलब है कि बहुत सी डेफिशिएंसीज छुप जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, ध्यान बढ़ जाएगा, थिंग्स आर इन गुड शेप। और मस्ट बी परफॉर्म टू लाइव ऑडियंस का मतलब है कि ऑडियंस, इन अदर वर्ड्स दे वांट अस टू रिकॉर्ड अ लाइव वीडियो विदाउट एनी एडिटिंग, ठीक है। ऑडियंस चाहे हो या ना हो, बट हम ऑडियंस भी बिठाएंगे और हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे और इट विल बी फन। अब 2 तरह की परफॉर्मेंसेस क्या है, डिवाइस पीस एंड स्क्रिप्टेड पीस। डिवाइस पीस वो है जो आप खुद से मेरी हेल्प से मिलके डिसाइड करोगे, अपनी मर्जी की कोई टॉपिक लोगे, उस पर आप परफॉर्मेंस क्रिएट करोगे। और स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस में है, हमें कैम्ब्रिज की तरफ से हमें ऑप्शंस मिलेंगी, हमने कुछ हफ्तों पहले बल्कि कुछ महीनों पहले, और उसकी बेस पे हम अपनी फाइनल परफॉर्मेंस प्रिपेयर करेंगे। दोनों की इक्वल वेटेज है। मूविंग डाउन, A2 ए लेवल का सेकेंड ईयर, उसमें अगेन कंपोनेंट 3 जो है एक और परफॉर्मेंस है हमारी, उसमें आपकी A2 में जाके आप कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़ा ट्रेंड हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी दे सकते हो। तो 20 मार्क्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और 40 मार्क्स की आपकी ग्रुप परफॉर्मेंस है, इसमें भी परफॉर्मेंस होगी। सो यू वुड बी सेइंग थिंकिंग कि वाओ क्या चिल कोर्स है, इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें कोई पढ़ने पढ़ाना। देखो परफॉर्मेंस वुड बी बैक्ड बाय स्टडीज, लेकिन स्टडीज इसमें बोरिंग बुक, बोरिंग टेक्सचुअल डिटेल्स, दे आर क्वाइट लिमिटेड, कम है। बाकी हमारी क्लास ग्रुप परफॉर्मेंस है, डिस्कशन है, हम वीडियोस देखेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेनर्स को बुलाएंगे जो हमें गाइड करेंगे, हमें जज करेंगे, और इंशाल्लाह थिंग्स वुड एंड अप इन अ वेरी नाइस वे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट पेपर, हमारी इस ओरिएंटेशन का लास्ट नहीं हुआ। अभी 3 मिनट्स के बाद सिंस जूम के थ्रू कर रहे हैं, हमारा ये ओरिएंटेशन ऑटो एंड हो जाएगी। यू विल हैव टू रीजॉइन इन लाइक 5 मिनट्स, क्योंकि ये वीडियो सेव होगी, सेव करने में थोड़ा टाइम लेता है, एंड देन हम दोबारा रीजॉइन करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स बाद में आंसर करूंगा और आपको कुछ वीडियोस भी दिखानी है। तो हम ये थोड़ी बोरिंग डिटेल पहले जल्दी से टच कर लेते हैं। कंपोनेंट 4 क्या है, ये आपका 2500 to 3000 वर्ड्स का एक ऐसे है, ठीक है। 60 मार्क्स इसके भी होंगे। द रिसर्च ऐसे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 ये क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा।
For each candidate, the following items must be submitted for this component. क्या रिसर्च ऐसे यानी उसमें ऐसे होगा और एक कवर शीट होगी, हम वो बनाएंगे, हम सबमिट करवाएंगे। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे भी ट्रेन कर रहे हैं कि आपको ऐसे रिसर्च रिपोर्ट लिखनी आ जाएगी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी होती है वैसे ये। अच्छा, ये आपकी बुक होगी, इट्स क्वाइट वेल रिटन, बहुत मजेदार है, इट्स फिल्ड विद व्हाट एक्टिविटीज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हम ज्यादातर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे और उसी की बेस पे मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ, और वही मार्क्स आपके सीआई से मेरी तरफ से इंडोर्स किए जाएंगे और सपोर्टेड बाय सम एविडेंस, और उसी की बेस पे आपका फाइनल ग्रेड लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी बेस्ड अपॉन योर वीकली एंड मंथली परफॉर्मेंस। जब छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे उन सबका वीडियो रिकॉर्ड रखेंगे, और ये आपको एज अ पोर्टफोलियो भी बन रहा होगा। इट विल रियली हेल्प यू आउट इन योर करियर लेटर ऑन। सो पीडीएफ के हवाले से दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। अब हम क्वेश्चन आंसर टच करेंगे और कुछ वीडियोस देखेंगे। सो इट्स लास्ट मिनट, आई वुड वांट यू, आई एम गोइंग टू एंड दिस प्रेजेंटेशन, दिस वीडियो रिकॉर्डिंग, दिस जूम सेशन, और इन 5 मिनट्स यू विल हैव टू रीजॉइन, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट्स के बाद। सो लेट्स एंड कनेक्ट अगेन।